Good afternoon, everyone. I, on behalf of Bhagwat Batch, present my warm welcome to our guest, Dr. Surekha Kishore ma'am, and our respected professors. She had done MD in 2000 from MGIMS Sevagram. Ma'am previously worked as Dean Academic Professor and Head Department of Community and Family Medicine, AIMS Rishikesh. Currently, ma'am is the Executive Director of All Indian Institute of Medical Sciences, Gorakhpur. Ma'am intend to provide comprehensive medicinal care to the community which will be affordable and acceptable. Ma'am has a vision to help students to become one of the best scholars, doctors, and researchers with regular upgradation of skill of doctors and healthcare providers. With this brief introduction about ma'am, I present my welcome to ma'am and request ma'am to enlighten us with her experiences and knowledge on the topic holistic health. Thank you, ma'am. You can start. Thanks a lot for your kind words, and myself, Dr. Surekha Kishore, Executive Director of AIMS Gorakhpur. I extend my heartfelt thanks to the organizing team, especially Professor Atul Vajpayee sir, Major General, and he gave me this opportunity to be presenting in front of you this topic on holistic health. So I am thankful to him and to all of you for participating in this CME. And today's topic, what I will be taking is regarding holistic health. Holistic health, as all of us know, and water. Holistic health, as we know that holistic means comprehension of everything in toto when it is concerning to any particular thing. And when we speak of health, health, as all of us know, is the state of complete physical, mental, social well-being. And it is not merely the absence of disease or infirmity. And this definition was given by WHO, and I think all of us are aware of it. And according to this definition, when we speak of physical, mental, social well-being, so it, as far as the medical sciences goes, it is basically these three aspects. But when we consider of holistic health means other factors also which are included in it. It is a comprehension of social, mental, and our physical. Along with that, the spiritual health and the moral health. There are lot many other health perspectives like environment and other things which I am going to detail in about it later on. One saying which I wanted to quote is that your own personal health is your own personal choice all the way down the lane. So when we define holistic health, it is the balanced approach on healing of mind, body, and the spirit. WHO considers in its definition that yes, spiritual health has to be added, but it is not documented right now. But it is one of the component which is important, and it carries a lot of meaning as far as today's era is concerned, which is full of stresses. This picture shows you a holistic way of life, which means that we are considering the body as a physical being, your mind as a mental being, and your soul as a spiritual being. And when we consider all the three aspects, and when these are considered in comprehension, and whenever we take up any issue related to health or any abnormality in any human being, we need to have a common perspective as far as body, soul, and mind is concerned. Various concepts of holistic health include the basic ones, which is finding out the root causes of disease or symptoms and removing the underlying cause, purifying the body of toxins and infections, and restoring the nutrient deficiencies as well. See, when we consider, I think, I hope lot of people understand Hindi, तो मैं थोड़ा सा आपको English में बोलूंगी ताकि it is more easily understood by everybody. जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने बात की,
तो हम लोग माइंड बॉडी के बारे में तो चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है स्पिरिचुअल हेल्थ, योर मॉरल हेल्थ, योर एनवायरमेंट हेल्थ, और हमारा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का जो भी हमारे साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, कई बार हम उसको छोड़ देते हैं। तो जो हमारे सारे जो हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, जब हम उसको पूरे एक ही पार्ट में देखते हैं, देन वी कंसिडर इट एज होलिस्टिक हेल्थ। सो मेन अगर हम लोग बड़े बड़ी बातें करें तो फिजिकल की बात करेंगे, सोशल की बात करेंगे, मेंटल की बात करेंगे, या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करेंगे। सो व्हेन वी कंसिडर होलिस्टिक हेल्थ, दैट मीन्स हेल्थ इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव, इन कम्प्रीहेंशन। और इसका जो अप्रोच क्या होता है, जैसे कि हम आयुर्वेदा देखें, होम्योपैथी देखें या बाकी सब, तो एलोपैथी में भी हम लोग वी यूजुअली गो फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द सिम्टम्स, whereas here the root cause of the disease is taken into consideration. We remove the underlying cause. उसके बाद हमारी बॉडी के साथ, ये तो हमारे सिम्टम्स और कॉजेज जो है डिजीज से संबंधित हो गए, इसके साथ साथ हमारी बॉडी में अदरवाइज जो भी टॉक्सिन्स हैं और इन्फेक्शंस है उसको प्यूरिफाई करने की बात आती है, या फिर हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं या हीलिंग प्रोसेस है, उसको कैसे करके हम लोग रेस्टोर करें और स्ट्रेंथन करें। सो दीज आर द अप्रोचेस विच द होलिस्टिक हेल्थ टेक्स इनटू कंसिडरेशन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे कि ओवरऑल जो है, वेन एवर वी कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, तो इसका जो कंसेप्ट है वो फिजिकल से भी संबंधित है, मेंटल से भी संबंधित है, सोशल बीइंग से भी संबंधित है, एनवायरमेंटल जैसे मैंने आपको बताया, और इसी के साथ साथ द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इन जनरल देयर आर लॉट मेनी अदर कंसेप्ट्स आल्सो अटैच्ड टू इट। हम होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम अगर देखें तो हमारे ज्यादातर, खासकर इंडिया की जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, वो होलिस्टिक कंसेप्ट पे के ही आधार पे बनी हुई हैं। जैसे हम लोग एलोपैथी की जब बात करते हैं तो वो थोड़ा सा एक नैरोड व्यू होता है, जबकि हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, यूजुअली इन जनरल सारे एस्पेक्ट्स को अपने साथ में लेकर के फिर लोगों को हील करती है। एक तरह से अगर हम बोले बहुत सिंपल वर्ड्स में, सो when we talk of medicine or allopathic medicine, it is treatment and management, whereas when we talk of traditional medicines या holistic medicine, holistic health, it is basically focusing on healing। और healing का मतलब है overall healing of a person, चाहे वो उसके social aspects हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, या फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं। इलनेसेस अगर हम इसके बारे में बात करें तो होलिस्टिक हेल्थ में हम लोग इलनेसेस को ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये इमोशनल, रैशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और सोशल बीइंग से संबंधित हैं। कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस जो है इनमें कहीं पे भी अगर होगा तो वो आपकी फिजिकल बीइंग में भी अपीयर करते हैं। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, आजकल के जो एरा में यू विल फाइंड लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, hypertension. So basically it is all maybe related to hereditary, genetic, your lifestyle factors. Then in another way, if you see, when we consider holistic view, there are other factors related to it. अगर आपकी पुअर सोशल लाइफ है, आपका पुअर सोशल ग्रोथ है, या फिर जैसे हमने सोशो इकोनॉमिक की बात करी, इवन things which lead to stress due to these problems. If you do not have a good social circle, if you do not have a good spiritual atmosphere, or your spiritual needs are there, or you are emotionally very low or very high, somewhere it causes stress, and stress would lead to release of some hormones which are not good for your health, and these may in turn lead to various diseases. So healing is concerned with the individual balancing of these energies. तो हमारे जो शरीर में है, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं जो हीलिंग की बात करते हैं, उनका
ये मानना है, जैसे हमें योगा ट्रेडिशन की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एटलीस्ट 72,000 नाड़ीज हैं, प्राणा एनर्जीज जो हमारी फ्लो करती है उन नाड़ीज के थ्रू। अगर हमारे को कहीं पे भी कोई नाड़ी ब्लॉक हो जाती है, which could be because of any stress factor or emotion or any other associated factors which has got effect on health. Whenever these channels are blocked, you will have some or the other physical ailment related. So हमारे जितने भी ट्रेडिशंस है आप देखेंगे वो होलिस्टिक हेल्थ और होलिस्टिक हीलिंग के बारे में ज्यादा बात करते हैं, जबकि हम उस हीलिंग में ये मानते हैं कि हमारी सारी एनर्जी लेवल्स और चैनल्स वो पूरे बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर आपका फिजिकली आप लोग मान लिया जाए इफ समबडी इज वेरी हैज गॉट वेरी गुड फिजिक, आप जिम जा रहे हो, भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, लेकिन मेंटली थोड़ा सा अपसेट है किसी भी कारण से, आपके घर में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, घर में बहुत सारे बीमार लोग हैं या कोई भी कारण है जिससे आपको स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस से अगर इवन इफ यू डू जिम एंड ऑल दोज थिंग्स दैट mental health issues will take place, the emotional health of the person will affect, and in turn it will lead to the formation of diseases. So when we talk of holistic health, it will consider everything and balancing of these energies. अगर हम लोग डायमेंशंस ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करें तो गुड होलिस्टिक हेल्थ अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका फिजिकल बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग, द इमोशनल बीइंग, द सोशल बीइंग एज वेल एज द मेंटल बीइंग। इसी के साथ साथ कुछ लोग हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल के साथ साथ मॉरल बीइंग भी, हमारी मोरालिटी ऑल्सो मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। और जब इन सब में एक सामंजस्य होता है, बैलेंस होता है, हार्मोनी होती है, देन यू आर हेल्दी इन अ होलिस्टिक वे, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसके अलावा हमारे और भी वेलबींग की स्टेट्स हैं, जैसे कि हम लोग फिजियोलॉजिकल वेलबींग बोलते हैं, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इवन न्यूट्रिशनल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। तो होलिस्टिक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम ये नहीं बोल सकते कि खाली फिजिकल, आप जिम जा रहे हो, आपका बॉडी वेट बहुत सही है, आप अच्छा खाना खा रहे हो तो बहुत सही है। होलिस्टिक में आपकी सब चीजें आएंगी कि आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, इमोशनली आप स्ट्रांग हो कि नहीं हो, क्या आप हर चीज लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, आपका सोशल सर्कल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, योर न्यूट्रिशनल डाइट, इमोशंस, एवरीथिंग इन टोटो will be considering will be considered as a part of your holistic health. हमारे योगा के जो लिटरेचर है वो हमारे को बताते हैं कि हमारे अंदर इतने शरीर प्रेजेंट होते हैं। 5 शरीर के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला जो बाहर वाला कोश है, अगर आप देखें, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश, जो कि आप न्यूट्रिशन जो खाना खाते हैं उसके द्वारा बनता है। और जो हम लोग खाना खाते हैं, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हमारे खान पान का व्यवहार बिल्कुल सही है, तो हमारा अन्नमय कोश बिल्कुल हेल्दी होता है। लेकिन इसके बाद आता है आपका प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो है ये आपके प्राणिक एनर्जी से बनता है ना। अगर इस प्राणमय कोश में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं फिजिकल बीइंग पे इफेक्ट होती है। आपका अन्नमय कोश बेसिकली मसल, स्किन, बोन, जॉइंट सारी चीजों से बना हुआ है। प्राणमय कोश आपके ब्रीदिंग स्ट्रक्चर से बना है जो कि विजिबल नहीं होता है। इट इज द pranic nadis which are inside our body. So anywhere person is smoking or has got a very bad polluted environment around him, then the pranamaya kosh is also affected. Third is the manomaya kosh, which is directly related to your mental health. मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश जो है ये आपके शरीर के वो अंग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को दर्शाते हैं। आनंदमय कोश जो है, दिस इज योर एक्चुअल स्पिरिचुअल बीइंग और द सोल इनसाइड यू। सो यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं आपके थिंग्स रिलेटेड टू रिलैक्सेशन और मेडिटेशन।
आपके जब भी हम लोग होलिस्टिक हेल्थ के बारे में योगा से संबंधित बात करते हैं, तो आपके ये पांचों शरीर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, हीलिंग सिस्टम, उसमें भी कहीं ना कहीं इन कोशों के बारे में जो है वो व्याख्या की गई है। मैं इसको ओमिट करूंगी। और अगर हम लोग अब पहले वाले शरीर के बारे में आते हैं, दैट इज अबाउट द फिजिकल हेल्थ, तो हमको कुछ चीजों के बारे में ध्यान देने वाली बातें हैं। एक तो है डाइट, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। ये एक क्विक रिव्यू है कि हमको एक अच्छा खाना खाना चाहिए, और ईटिंग डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए अपने मील्स स्किप नहीं करने चाहिए। आपको फिक्स टाइम पे फिक्स आहार हमेशा लेते रहना चाहिए, ओवर ईट नहीं करना चाहिए। और वी शुड क्लींस द बॉडी बाय ड्रिंकिंग एटलीस्ट 8 to 10 glasses of water per day. And to increase the endurance and immunity, we should maintain fitness by exercising the body. आप घर के काम कर सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। और आप लोग चूंकि बिल्कुल यंग बच्चे हैं, आपको मैं जरूर सलाह दूंगी कि चाहे आप योगा के द्वारा, चाहे रनिंग के द्वारा, चाहे जिमिंग के द्वारा, ट्राई टू एक्सरसाइज योर बॉडी एंड मेंटेन फिटनेस, क्योंकि उसके द्वारा आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और अगर इन केस आपको कहीं पे भी लगता है कि बिकॉज ऑफ एनी इम्बैलेंस यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर हेल्थ, you should immediately report and get your regular checkups. And to enhance growth and development, this is very important that you sleep at least 7 uninterrupted hours. To prevent addiction, we need to avoid all the addictive substances, whether it is smoke or alcohol and any other drug which is detrimental to health. अब मेंटल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी और स्किल्स को इम्प्रूव करता है। और जब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी होती है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होती है। मेंटल हेल्थ के बारे में भी आगे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि मेंटल हेल्थ जो है, व्हेन वी आर नॉर्मली बिहेविंग विद अदर पीपल एंड वी आर एक्सेप्टिंग व्हाटएवर द अदर पर्सन इज सेइंग, और हम लोग बहुत जल्दी से किसी को रिएक्ट नहीं करते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, समझते हैं, एम्पैथाइज करते हैं। और आपकी मेंटल हेल्थ जो है, व्हेन इट इज नॉर्मल, you do not need any other external facilitator. But yes, in case if you have any issues related to your imbalanced mental status, may be related to depression, may be related to anxiety, may be related to any other environmental issue, then definitely a counselor or a mental health guide is needed. और इसी के साथ साथ अगर हम लोग मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो है आपका मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन योगिक साइंसेस। अगर हम कुछ अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, तो हमको लाइफ में कुछ चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। जैसे हमको अपनी लाइफ के रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए। अब हम अगर पहले से ये सोच के रखें कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हम रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं कि नहीं, मैं बड़ा होके अच्छा टीचर बनूंगा, प्रिंसिपल बनूंगा, किसी कॉलेज का कुछ अच्छा करूंगा। यस, यू कैन ड्रीम ऑफ बिग, बट हैव रियलिस्टिक गोल इन लाइफ। ताकि इंसान जब बहुत ज्यादा लाइफ से एक्सपेक्ट करता है, देन व्हाट हैपेंस इफ दे आर नॉट फुलफिल्ड, देन यू हैव इम्बैलेंस्ड मेंटल स्टेटस, मे बी डिप्रेशन और एनी अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम। सो सेट अप सम रियलिस्टिक गोल्स इन लाइफ। फिर आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसे ओपन माइंडेडली देखें। नो द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ। हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम इतने सक्षम हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम ये पूरा कर सकेंगे। अब मैं ये सोचूं, अगर मान लीजिए जब मुझे पता है कि मैं इतना पढ़ पाऊंगी या इतना समय पढ़ाई को दे पाऊंगी, इतना मैं नहीं कर पाऊंगी। हमारे को गोल्स उसी तरह से सेट करने हैं कि हम अपने ही एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में कामयाब हों। कई बार हम एक्सपेक्टेशन अपने से बहुत ज्यादा करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं, जिसके कारण आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, स्पेशली
when problems which are conflicting. तो आपकी बॉडी जो है, एक कोट अगर आप देखेंगे इसमें लिखा था, बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स. सो इफ यू बिलीव, you are confident of yourself, that I'll do this and I can do that. Set up that realistic goal, do that, and don't ever have a negative attitude towards yourself as well as to the other person. So definitely अगर हम लोग ये छोटे छोटे चीजें फॉलो करेंगे तो लाइफ में शायद हमारे को ऐसी कोई इशू नहीं आएगी जिसके कारण हम एंजाइटी या फिर स्ट्रेस हो. एक हम लोग बात करते हैं इमोशनल हेल्थ के बारे में. आजकल एक वर्ड चल गया है, इमोशनल कोशेंट. इमोशनल कोशेंट बेसिकली आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में बताता है कि आप कोई भी इमोशन को डील करने के लिए कितने सक्षम हैं. और इमोशनल हेल्थ आपकी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि फिजिकल हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, इफ you have a very good friend and you fight with him, and the next day you have stopped speaking to that person. आप जिसके साथ बहुत attached हो, you had a breakup with that person and you feel depressed. So this feeling of ourselves as well as others, we have to accept them. Let us not fight those feelings. हमारी लाइफ में स्ट्रेस या इमोशनल प्रॉब्लम्स तभी होती हैं जब हम कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते. अगर आपको किसी ने कुछ भला बुरा बोल दिया, यू फील वेरी बैड, यू फील वेरी हर्ट, and this is the point where the stress in your body rises and it leads to imbalances in your energy spheres. So somewhere we need to accept the other person's point or the feelings and cope with your own feelings. हो सकता है हमें उस समय बुरा लगे, लेकिन हमको दूसरे की फीलिंग्स और दूसरे के इमोशंस को भी समझना पड़ेगा, एम्पैथाइज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखिए. हम लोग बहुत बार बोलते हैं, उसने मुझे ऐसा कैसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, he cannot do that. No, everybody has got freedom to do that. It is his understanding or her understanding, but your understanding is different, may be different. So हम सबके माइंड अलग अलग होते हैं, हमारी भावनाएं अलग अलग होती हैं, और हमको एक जो हम सबको समझाते हैं कि अपनी इमोशनल कोशेंट को, IQ को जैसा होता है वैसे ही EQ भी होता है. इमोशनल कोशेंट को कैसे हम लोग एक बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं, वो तभी रख सकते हैं जबकि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि जो दूसरा कह रहा है या समझ रहा है या फील कर रहा है is okay with him and what I am feeling is okay with me. We should not fight with the feelings. Once we start fighting with feelings, that is the point when the stress is created. अब इसको अटेन करने के लिए अब ये कहा जाता है कि हम लोगों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और हमको अवेयर होना चाहिए. अगर कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं है और अगर उससे कुछ गलती हो गई, मान लिया जाए उसके कारण आपका गोल नहीं लगा, फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हुआ, one has to accept that his strength is something else and his weaknesses are this. So let us accept it. Don't fight. Handle the stress and seek help in case if you feel that yes, despite of all the efforts, you are feeling stressed, you should definitely meet the counselor, talk to the person. Develop a strong communication networks amongst family, friends and peers. ये बहुत जरूरी चीज है. आजकल आप देखेंगे बहुत सारे एडोलेसेंट्स और बच्चे जो हैं देखिए अपनी लाइफ को हार्म करते हैं. कई बार आपको लगता है कि आप पढ़ाई में उतना अव्वल नहीं कर पा रहे हैं जितना आप कर सकते थे, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपकी फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, आपकी फ्रेंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको किसी भी कारण से किसी ने गुस्सा कर दिया और किसी ने कुछ ऊंची आवाज में बात कर दी, किसी ने कुछ और बोल दिया, तो आपको आपके अंदर इतनी अपने को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि you should accept yourself and accept the emotions of other persons also. आपको सबसे जो बड़ा हेल्प इसमें मिलेगा आपके सोशल नेटवर्क, और सोशल नेटवर्क में आपके नियर एंड डियर वंस होने चाहिए.
It should not be right now we are talking to our Facebook friends in Instagram, here, there, and we collect people and we talk to them. But as far as you know, sages are concerned and other people are concerned, they always suggest that we should have a good network of very good friends, your family members, and good confidential peer members who can guide you. Because आप जब अपनी फीलिंग लेट डाउन करते हैं, लेट आउट करते हैं उनके सामने, आपको बहुत सपोर्ट मिलता है. अगर आपका कोई फास्ट फ्रेंड है, आपकी मदर है, आपकी फादर है, ब्रदर है, प्लीज शेयर योर फीलिंग्स. इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ यू हैव फ्लंक्ड इन एग्जाम्स, कई बार नंबर कम आ गए या कोई इस तरह की प्रॉब्लम, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मदर के साथ शेयर करें. शी विल ऑलवेज बी द राइट पर्सन हु विल ऑलवेज एनकरेज यू एंड हेल्प यू आउट. सो आपके पास, देखिए, इंसान जब अपने फीलिंग्स बॉटल्ड अप करता है तब जाके स्ट्रेस क्रिएट होते हैं. पीपल गो फॉर सुसाइड्स एंड अदर टैक्टिक्स ऑफ हार्मिंग देमसेल्व्स. ड्रग्स करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट विल बी अवॉइडेड if you have good linkages, good networks where you can share your feelings. आप अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप ना करते हुए शेयर करिए. तो आप शेयर करने से आपको हल्का भी लगेगा और साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी. तो ये बहुत जरूरी है. इसी के साथ साथ जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको एक सोशल नेटवर्किंग बहुत जरूरी है. आपके साथ जितने लोग रहते हैं आसपास के, उनके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिससे आपका इमोशनल कोशेंट और ऊपर आएगा और बढ़ेगा. कुछ चीजें जो सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हैं, वो है इंटरेक्शन विद अदर पीपल. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. मेरे ख्याल में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में ये चीजें समझाई गई होंगी, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ. और अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ इमेज रखें. हम हमेशा, कई बार होता है, बहुत सारे लोग अपने बारे में बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अपना पोटेंशियल. देखिए, हर इंसान को भगवान ने बहुत खास बनाया है और सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं. तो कभी भी किसी कारणवश भी अगर आप लो फील करते हैं, कुछ भी है, कहीं गए और आपको आपको वो स्थान नहीं मिला जो आप चाहते थे, डोंट फील बैड अबाउट इट. इट्स ओके. देयर आर सो मेनी पीपल इन लाइफ. somebody may be above you, somebody may be below you. So everybody has got some important thing in their own self. They have some important qualities. So always think of positive self-image. ऊपर वाले ने आपको रच के यहाँ पे संसार में भेजा है, तो आपके अंदर कुछ खासियत होगी तभी भेजा. तो ये हमेशा अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज अज्यूम करें, क्रिएट करें, एंड ऑलवेज फील गुड अबाउट योरसेल्फ. हैव गुड इंटरेक्शन विद अदर पीपल और दूसरों के कल्चरल नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें. ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे जगहों पे ऐसे, मान लिया जाए आप किसी और देश में पढ़ रहे हैं, किसी और जगह पे पढ़ रहे हैं, और हम बोले ये तो आप गलत कर रहे हो. भाई, जिसके जहाँ का कल्चर है, जहाँ का ट्रेडिशन है, उसको एक्सेप्ट करिए. आपके यहाँ का बहुत अच्छा, उनके यहाँ का भी अच्छा है, उनके यहाँ का बुरा नहीं है. So let us have, once we start accepting things and everything around our environment, we will be the happiest person on this earth. मॉरल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें भी बहुत चर्चा करने वाली बात नहीं है. लेकिन अपने जो मॉरल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. हमारी फेथ, हमारे बिलीव्स और हमारे वैल्यूज जो हमें मिले हैं विरासत में, और साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन और स्पिरिचुअल हेल्थ, अपने अंदर झांकने की क्षमता, हमारे सोल में, आत्मा में झांकने की क्षमता. देखिए, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन 2 अलग अलग चीजें हैं. मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम रिलीजन के बारे में बात नहीं करते हैं. रिलीजन एक अलग चीज हो गई, वो एक सेक्ट है जिसको जो भी फॉलो करेगा, और उसके द्वारा जो आप अपनी आत्मा तक पहुंचते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, वो आपकी एक स्पिरिचुअलिटी है. दैट इज डिफरेंट देन दिस. अब होलिस्टिक हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं.
एक तो है आप नॉर्मल हेल्थ हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, डिजीजेस हम दूर रख सकते हैं, और जो डिजीजेस अगर हो गई हैं तो उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना और मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव हेल्थ, दैट मीन्स मेंटेनिंग दैट पॉजिटिव हेल्थ, ये हमारे होलिस्टिक हेल्थ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी रिसेंटली मैं आगे और कुछ स्लाइड्स भी दिखाऊंगी। हम होलिस्टिक हेल्थ के बारे में मुझे जब पूछा गया था कि कौन से टॉपिक पे बोलना चाह रहे हैं, तो मैंने होलिस्टिक हेल्थ इसलिए चुना था क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मेरे दिल के करीब भी है, और इसमें बहुत सारे नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश से ज्यादा बाहर के देश के लोग इसके ऊपर रिसर्च ज्यादा कर रहे हैं। और अब जैसे जैसे रिसर्च हो रही है तो लोगों को अब समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी तरह का भी स्ट्रेस जो है, वो स्ट्रेस फैक्टर आपके हार्मोन सिस्टम को भी कहीं ना कहीं बिगाड़ता है, और उस हार्मोन सिस्टम से एंडोक्राइन सिस्टम हमारा जो इफेक्ट होता है, उससे आपका नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी गिर जाती है। तो जब आपके सारे जब ये सिस्टम इफेक्ट होते हैं, तो आपका एंडोक्राइनल सिस्टम एक बार इफेक्ट हुआ तो आपकी सारी ग्लैंड्स में थोड़ा थोड़ा डिसफंक्शन शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सिम्टोमेटोलॉजी उसी की तरफ ही दिखेगी कि किसी का डायबिटीज हो गई है, हाइपरटेंशन हो गया है, मसल पेन हो गया है, कुछ हो गया, कुछ हो गया, थायराइड। आजकल आप देखिए हाइपोथायराइडिज्म इतना ज्यादा कॉमन है। नाउ साइंटिस्ट अब इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन ऐसा कहा गया है, जिसको हम बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, एक ये ब्रांच है कि अगर आप स्ट्रेस में हो, आपका मेंटल कंडीशन बहुत वीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को भी खराब करता है और आपके न्यूरल सिस्टम को भी खराब करता है। दूसरा एक ब्रांच है साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, कि आपकी अगर साइकिक में अगर कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं या कुछ भी है, तो इससे आपकी एंडोक्राइन सिस्टम में इफेक्ट होता है, जिसके कारण आप फिजिकल डिजीज के शिकार हो सकते हो। ये एक इसको मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझाऊंगी, लेकिन बस आपको एक ये मैकेनिज्म बता रही हूँ। ये जो साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है, वो इस तरह से इफेक्ट करती है। जब भी हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है, तो हमारे दिमाग से ये हॉर्मोन्स जो है, जितने भी हमारी ग्लैंड्स हैं, जैसे इसमें स्पेसिफिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, इवन थायराइड ग्लैंड है, all these glands are affected, and then leading to increase enhance glucocorticoids। and glucocorticoid के इफेक्ट हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, which releases lot of stress hormone। आपकी एमेगडिला को ये इफेक्ट करता है, हिपोकैम्पस को इफेक्ट करता है। और ये एमेगडिला जो है, ये हमारा बहुत सारा जो हमारा इमोशनल कोशेंट के बारे में जो मैं बात कर रही थी, ये इमोशनल कोशेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो कहीं ना कहीं जब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्ट्रेस लेवल जब बढ़ते हैं, तो आपके ये हार्मोन्स भी बढ़ते हैं, और इन हार्मोन्स के द्वारा हमारे बॉडी में जो ये नेगेटिव हार्मोन्स जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये नेगेटिव हार्मोन्स की तरह काम करते हैं और हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। अ, मैं कुछ कुछ स्लाइड्स स्किप करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आपको इजी होगा उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ स्टडीज हुई हैं जो इन्होंने कुछ बाहर के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने बताया है, जिसमें उन्होंने कंक्लूड किया है कि एक इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ऑल्टर हो जाता है कब, व्हेन इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट्स। इट इंक्रीजेस द बॉडीज वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर एंड ऑटोइम्यून। इसलिए आप खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगे आपसे बीमारियां भी उतनी दूर रहेंगी। जितना उदास होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, वह उतने ज्यादा इन्फेक्शंस भी होंगे आपको। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आ जाते हैं, तो दे स्टार्ट हैविंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस,
ब्रेथलेसनेस, अस्थमा, ये सारी जो डिजीजेस हैं ये बढ़ जाती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो स्टडी हुई थी ऑर्टिगा ने 2006 में और रजनथाल ने 2002 में, 4 में, 6, ये सारी स्टडीज ये दर्शाती हैं कि स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो कि आपके इम्यूनिटी को खराब करता है, कम करता है, जिसके कारण आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस, इवन कैंसर भी हो सकते हैं और ऑटोइम्यून डिजीजेस का भी कारण हो सकता है। इसी के साथ साथ एक और ये 3-4 स्टडीज और हुई हैं जो 2003 और 2002 में हुई थी, जिसमें अगेन फिर से इन्होंने दर्शाया है कि स्ट्रेस में इंड्यूस इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, अब इम्यूनिटी जब आपकी सप्रेस हो जाएगी स्ट्रेस के द्वारा, फिर आपको बहुत कोई भी छोटी मोटी चीजें भी होंगी तो वो बहुत ज्यादा गहन रूप ले लेती हैं उसका। उसके बाद एक और स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक्सपोजर टू क्रोनिक स्ट्रेस इंड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स विच इज सिमिलर टू और एन इवन ग्रेटर देन अ कंट्रोल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जब भी हम क्रोनिक स्ट्रेस में भी होते हैं, it also leads to lot of diseases। और योगा लिटरेचर में तो ये भी कहा गया है कि क्रोनिक स्ट्रेसेस से हमारी प्राणिक एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण आपके ट्यूमर या कैंसर्स हमारी बॉडी में ग्रो कर सकते हैं। ये सब स्टडीज हैं, मैं अगेन आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। हमारे को जो है लाइफ में जो हेल्थ एजुकेशन एक होना चाहिए, ये हमारी रिकमेंडेशन है, which regards the management of emotions in order to facilitate the appropriate channeling and expression of emotions, which is a form of disease prevention, consequently a reflection of health and well-being। अब इसमें नाम हेल्थ एजुकेशन का दिया है, लेकिन अब हम इसको काउंसलिंग के बारे में ज्यादा बोलते हैं। जब हम इमोशंस को मैनेज कर सकें, इस तरह के चैनल्स होने चाहिए। और सबसे अच्छा चैनल इमोशंस को मैनेज करने का होता है आप रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, टॉकिंग टू योर नियर एंड डियर वंस। इससे आप जो है अपने जितने भी हमने बोला है स्ट्रेस या जो इमोशंस है उसको एक आउटलेट मिलता है। नाउ अ डेज इवन कैंसर पेशेंट्स एंड पेशेंट्स हु आर इन डिप्रेशन, उनको कहा जाता है, पेट थेरेपी आजकल शुरू हो गई है, जिसमें जो डॉग्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डॉग्स होते हैं who play around with the patients and all and they let out their feelings with them, और कहते हैं उनकी हीलिंग बहुत अच्छी हो रही है। इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है अभी। तो हमारे बहुत सारे जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, हम किन लोगों से जुड़ते हैं, किन के साथ अपना व्यवहार साझा करते हैं, किसके साथ क्या बोलते हैं, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल हम लाइफ स्टाइल के बारे में बोलना चाहेंगे वो भी, देखिए बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैक्टर हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई है। लोग पहले घर में ऐसा होता था कि कोई घर में देखभाल करने वाला होता था और घर का जो मुखिया होता था वो नौकरी पे जाता था। आजकल चीजें बदल गई हैं। बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, देयर इज अ चाइल्ड इन द हाउस, घर में कोई देखने वाला नहीं है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो मदर फादर वर टेकन केयर ऑफ, राइट नाउ इट इज नॉट देयर। बच्चा नौकरी के बारे में अगर हम बात करें, होलिस्टिक मेडिसिन इज होलिस्टिक मेडिसिन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि सब जितने भी हमारे यू नो ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव इनेट हीलिंग पावर। हम सब के अंदर हीलिंग पावर है और पेशेंट इज अ पर्सन नॉट अ डिजीज। जो ज्यादातर हम लोग देखेंगे एज अ मेडिकल प्रोफेशन वी ट्रीट अ डिजीज, वी हम लोग पेशेंट को एक डिजीज की तरह देखते हैं, वैसा नहीं, पेशेंट को आप पर्सन की तरह देखिए। एंड द पेशेंट इज अ पर्सन एंड नॉट अ डिजीज। वी शुड नॉट बी फोकसिंग, हम लोग डिजीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और कहीं ना कहीं हम जब होलिस्टिक मेडिसिन में की बात करें तो हम लोग पर्सन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। We focus on the disease, but the main focus is on a person, and through the person we heal the disease. Healing takes a team approach, which involves a patient, doctor,
and addresses all the aspects of personal life. Treatment involves fixing the cause of the condition and not just alleviating the symptoms. हम एलोपैथिक मेडिसिन में हम लोग ज्यादातर कंडीशंस में ये देखेंगे कि हम ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज करते हैं. अगर फीवर है तो पैरासिटामोल दे देते हैं, या फिर कोई भी हम उस सिम्टम्स को, साइंस को, उसको कम करने के लिए देते हैं चीजें. लेकिन होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो हम रूट कॉज, जैसे हमने पहले भी बताया ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, रूट कॉज को ट्रीट करते हैं. कि अगर मान लिया जाए इम्यूनिटी कम हुई, अगर यूआरआई है या कोई भी ऐसी डिजीज है जो इम्यूनिटी कम होने की वजह से, तो इम्यूनिटी कम क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. स्ट्रेस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ सोशल प्रॉब्लम और एनी अदर प्रॉब्लम. सो वी नीड टू फोकस ourselves into that problem also. तो हमें पर्सन के ओवरऑल पूरे पिक्चर को कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी डिजीज के बारे में बात करते हैं. हम जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जब हम होलिस्टिक हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा मेन एम जो होता है वो है ये वाला, दैट इज पेशेंट्स एजुकेशन ऑन लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड सेल्फ केयर. एंड उसके साथ साथ यस, treatment techniques which are helpful for the patients so that they are able to take up the responsibility for their own well-being and achieve optimal health. Allopathic medicine, surgical procedure wherever they are required. At the same time, overall health के लिए हमें ये बहुत जरूरी है. Number 1 diet, second one exercise, third is the psychotherapy and relationship and the spiritual counseling, which is very important. हमारी सोशल लाइफ हमारे लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे स्पिरिचुअल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, द इंटेलेक्चुअल वेलबींग एज वेल एज द फिजिकल वेलबींग. देखिए होलिस्टिक हेल्थ का बहुत बड़ा है. इट्स नॉट जस्ट focusing on one simple thing. There are lot many issues. I'm just selecting some slides which are important for you so that it will help you to have a concept of holistic health. एक हम जो स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि हम जो पहले बताया फिजिकल हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है. फॉर योर मेंटल हेल्थ यू नीड टू हैव फ्यू थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट. सोशल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो आपका इंटरेक्शन, योर नेटवर्क, योर फैमिली, your friends, your peer, they matter a lot. So have open communication with them. दूसरा जो है ये रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, दैट इज मेनली फॉर योर स्पिरिचुअल हेल्थ. सो रिलैक्सेशन और इमेजरी से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक तो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, मसल्स आर रिलैक्स, योर ब्रीदिंग इज रिलैक्स, यू हैव बायो फीडबैक, बॉडी अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ. आपको आपकी बॉडी, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी, you will get the feedback. Whenever you are stressed, you can feel that stress in that part of the body. So have that relaxation. जब प्रोसेस आप अपनी बॉडी में रोज आप जैसे एक छोटा सा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है शवासन की, जो कि आपके यहाँ पे योगा का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो आप अगर आपकी मैडम से बोलेंगे किसी दिन शवासन या योगा निद्रा कराएं, that gives you a full body awareness as well as relaxation. It has got a lot of health benefits and it maintains the homeostasis within the body, improves the circulation, the levels of carbon monoxide, the heart rate is improved. Heart rate जब हम exercise करते हैं तो it is increased, whereas when you are relaxed it is reduced. और जब heart rate आपका reduce होता है, आपकी body की demands भी reduce, oxygen demand reduce जाती है और आप बिल्कुल एक रिलैक्स स्टेट में होते हो, योर ऑर्गन्स, योर बॉडी एंड एवरीथिंग. सो डू द रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस डेली फॉर फ्यू मिनट्स व्हेनेवर आइदर यू गो बैक इन द इवनिंग. और रिलैक्सेशन का मतलब सोना नहीं है, वो एक अलग चीज हो गई. एक सिंपल रिलैक्सेशन विद फुल अवेयरनेस. Even it is helpful in pain management. It decreases the fight and flight response and also decreases the chronic fatigue symptom.
Meditation and dhyana again is very important for you. And आजकल के जमाने में चूंकि हम लोग ऐसी दौर से गुजर रहे हैं जब लोगों के पास समय नहीं है, तो आपको छोटे छोटे मेडिटेशन के, या तो आप किसी मेडिटेशन के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो एक अलग है. Otherwise, you can have, there are a lot of meditation things which are going on. There are walking meditation, standing meditation, some little bit of time when you are sitting quietly, looking into yourself and are with your soul. So take out some time to look into yourself. I wish I had time to have some guided meditation with you. But yes, sometimes I will come to your college and do that. वो हम किसी आगे की एक्सरसाइज के लिए रखते हैं. अभी के लिए सिर्फ एक जानकारी के लिए. अगर हम मेडिटेशन के बारे में चर्चा करें तो मेडिटेशन के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो रिलैक्सेशन मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, एज वेल एज हीलिंग पावर आपकी बहुत बड़ी हो जाती है. अगर बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन जो रिसर्चेस हुई हैं उससे उसके हिसाब से चलें तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जब मेडिटेशन करते हैं तो आप इट रिड्यूसेस पेन एंड एनहांसेस द बॉडीज इम्यूनिटी, जैसे हमने बोला. और इट रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इवन एंगर एंड कंफ्यूजन, increases the blood flow and slows down the heart rate, provides a sense of calm and peace as well as balance. It helps to reverse the heart diseases. अभी तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं सॉरी, जिसमें ये पाया गया कि खासकर एक ब्रह्म कुमारी के यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स, जिन्होंने स्टडी की, जो हार्ट ब्लॉक के केसेस थे उनका हार्ट ब्लॉक रिवर्स हो गया. मतलब वो ठीक हो गए बिना दवाई के, बिना सर्जरी के, बिना बाईपास के, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेडिटेशन. उनकी हार्ट डिजीज जो थी वो रिवर्स हो गई, नॉर्मल हो गए. ऐसे ही when you meditate you are focused, you have control of thoughts, it increases and enhances your energy levels, and definitely yes, it helps to reduce the stress. इसी के साथ साथ जब हम होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता ही दी थी कि आपको जहां तक हो सके अपनी डाइट और अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने का, रिलैक्स करने का, मेडिटेशन करने का समय निकालना है और करना है. इसके साथ साथ हमारे होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव थेरापीज भी हमारे होलिस्टिक मेडिसिन, जब हम बात करते हैं इसके साथ साथ बहुत सारी हैं जिससे आपको हीलिंग के कुछ नए नए उपाय, जैसे एक्यूपंक्चर, कीरो प्रैक्टिस केयर, होम्योपैथी, मसाज थेरापी, नेचुरल थेरापी. इसलिए अगर आप देखेंगे कि इफ somebody massages your body, it helps you a lot. स्पिरिचुअल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए हमको होपफुल होना जरूरी है. मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स स्पिरिचुअल वेलबींग के ऑलरेडी बता चुकी हूँ. वी नीड टू डेवलप अवर इनर स्ट्रेंथ, हैव अ लविंग एटीट्यूड, एक्सेप्ट अदर्स एंड एज वेल एज फॉरगिव अदर्स. किसी ने आपको, मान लिया जाए 4 दिन पहले कोई गाली दी और आप फिर मर के घूम रहे हो कि इसको कैसे करके हम पिटाई कर दें, ये कर दें, तो फॉरगिव इट, let it be. So these accepting oneself and forgiving others definitely helps you to be calm and maintains your calmness and peace, which will reduce the stress level. So overall अगर आप होलिस्टिक के बारे में बात करते हैं, 5 कोशों के बारे में बात करें जो योगा के कोश हैं, तो फिजिकल वेलबींग के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप फिजिकल एक्सरसाइजिंग, रनिंग, जॉगिंग, जिमिंग वो सब कर सकते हैं. खाना पाना अपना ठीक कर सकते हैं, वो आपका अन्नमय कोश है. उसके बाद जो प्राणिक एनर्जीज है उसको योगा में अगर हम बात करें, उसके लिए रनिंग और ये जिसमें आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव हो, दैट इज योर प्राणमय कोश. और उसके आगे आगे जितने कोशेस हैं दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड विद योर स्पिरिचुअल वेलनेस एंड स्पिरिचुअल बीइंग. सो जहाँ पे आपके मनोमय कोश है या आपका विज्ञानमय कोश है, आत्मन है,
These are all directly, indirectly related to your conscious and subconscious mind. और जब भी हम लोगों के इन सारे शरीर में, या फिर हम बोलें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल, हमारी किसी भी जगह पे किसी भी तरह का इम्बैलेंस होगा, इट विल बी इफेक्टेड इन ऑल द स्फीयर्स. सो अगर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेस्ड है, आप खाना खाना छोड़ देते हैं या ओवर ईट करते हैं, तो आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं और डिजीज हो जा सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इम्यूनिटी कम हो रही है, आपका ह्यूमोरल सिस्टम सारा खराब हो रहा है. तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं. तो हमको एक बैलेंस बनाने के लिए लाइफ में इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जो कि मेनली जुड़े हुए हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से. चाहे वो खान पान है, एक्सरसाइजेस है, प्रॉपर स्लीप है, या फिर आपका सोशल नेटवर्क है, आपकी आउटलेट ऑफ योर थॉट्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल इम्पॉर्टेंट. योर रिलैक्सेशन, मेडिटेशन to improve your spiritual health. And yes, no to any kind of drugs, smoking or alcohol will definitely make you a good holistic health person, and a person who has got good holistic health and comprehensive health. That is what we need to focus upon. Right now हम लोग एलोपैथी करते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं एक पर्सन को होलिस्टिक वे में देखना चाहिए. हर पर्सन के अंदर हीलिंग पोटेंशियल है, उसको जगाना है. उसको अगर ठीक करना है तो सारे स्फेयर्स में बैलेंस होना जरूरी है. एक भी जगह इम्बैलेंस होगा, इट विल बी इफेक्टेड इन योर फिजिकल हेल्थ. So with this, all the best to all of you for your patient hearing, and I would be very happy to answer any queries. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. You are unmuted. Thank you, ma'am. I am just asking that all the students of BMS Yeah. here Yes. means all students BMS, if they have any query, they can ask. Because your topic मैंने is अपनी तरफ से बहुत सिंप्लीफाइड वे yes, में yes, बोलने की yes, बताने की yes. कोशिश की है, so Definitely, ma'am. that You cover all the students can points. appreciate that. Yeah. Yes, you Please, cover all please. the points, ma'am. Yes, sir. Thank you. Anything? Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you very much. Good afternoon, everyone. So on behalf of Guru Gorakhnath Institute of Medical Sciences, Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur, I express my special thanks to our guest, Dr. Surekha Kishore ma'am, for accepting our invitation and guiding our students on every aspect of holistic health. And your lecture will definitely help and motivate our students for their overall development. And definitely they will try to become a happy human being and make the world happy. Thank you so much, ma'am. Thank you for interacting Thank you. with our Thank students. you. Thank you. Thank you. I'm sorry I couldn't come personally because we have got some SR interviews going on. It's okay, ma'am, but we are still waiting for you to come over here and interact. I'll with- definitely come sometimes. Yes. Thanks. Okay. Thank you. Thanks a lot.